I, Samidi, Ankit and Anand are here in the Gazipur village for a project on garbage and landfill. Here you can see a landfill is here in which the waste or garbage from whole Delhi is being dumped here. Here there is also a biogas plant where we will go. We will take interview of many people working here, the common people living here, and we will ask them about the advantages or disadvantages, about the problems which they are facing. So it would going to be a real fun. We all can see that we are here in the Gazipur landfill and the garbage are here all around. You can see that the garbage is all filled here, it's dumped and a lots of scavengers are flying there. Now we all are here to take interview of a person who is working here. So let's start. नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? करणपाल। तो करणपाल सर जी, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? ये मैं हाउसकीपर का काम करता हूँ। किसका? हाउसकीपर। सफाई का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको कैसा लगता है काम करना? गर्व महसूस होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर काम करने से? ये पैसे सही नहीं मिलते, सैलरी सही नहीं मिलती है। हाँ जी। आपका नाम क्या है सर? वीरपाल सर। यहाँ पर काम क्या करते हैं? सफाई करते हैं। सफाई में क्या करते हैं? उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं या कूड़ा इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मेरे को कचरा डाल दे। अच्छा, हाँ जी। मेरे को तो बिल्डर का नहीं मिली। क्या करते हैं सर आप यहाँ पे? सफाई का काम करते हैं, लेकिन क्या सफाई में क्या करते हैं आप? कूड़ा डालते हैं, उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं? नहीं, यहाँ नहीं करते हम, बकरा मंडी काम करते हैं। तो मेन यहाँ पर काम क्या होता है यहाँ पे? मैन यहाँ पे कूड़ा डलता है सर, सारा कूड़ा गिरता है। दिल्ली के कितने एरिया का कूड़ा डलता है यहाँ पे? यहाँ लगभग सारी दिल्ली का गिरता है। पूरी दिल्ली का? दिल्ली ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, सब दिल्ली का? कल्याणपुर हाँ, सबका। तो कूड़ा डालने के बाद पहले सारा कूड़ा ट्रक में आता है, उसमें डल जाता है। उसके बाद अब ये पीछे साइड में थोड़ा पार्क वार्क बनाना है, ऊपर से मट्टी वट्टी गिर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर मिट्टी के डाल के इसके ऊपर घास उगा के थोड़े पौधे वौधे उगाने हैं ताकि साफ लगे कूड़ा, और कूड़ा भी यहाँ पर होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या प्रोसीजर हो रहा है। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इस पर मिट्टी डालेंगे, उसके बाद इसमें घास वास उगाएंगे ताकि ग्रीन दिल्ली बन सके। गाजीपुर लैंडफिल इज ऑल्सो नोन एज द ट्रैश माउंटेन. Delhi is going to face an impending disaster which comes with a killer stench and health hazards because the dumping grounds of Delhi are pushing its limits. One recycle plant under each corporation has failed to handle the load. Municipal corporations in Delhi continue to dump at these three saturated sites, ignoring a Delhi Population Control Committee ban imposed 5 years ago. The sites' peripheries are getting illegally enlarged, posing serious health hazards for the residents in the vicinity. The three corporations accuse the DDA of not providing them alternative land despite an order of the Supreme Court 14 years ago and repeatedly in 2010, terming the situation alarming. The committee report says a minimum 650 acres of land, which is practically impossible given to the acute scarcity of land in the capital. From a distance, that mounds of overflowing filth took monstrous and used unless it is dealt with immediately, they are set to spread, causing further environmental and health problems. The way out could be to find alternative sites to dump the city's waste garbage of 9,000 tons, as well as to process the waste efficiently so that 80% of it can be converted into energy or compost or any other useful product. Yet nothing has been done so far, as has been confirmed by a Delhi High Court constituted committee. No alternative sites for landfill has been provided and no concrete steps has been taken to recycle the waste. While the three present sites at Gazipur, Bhalaswa and Okhla are already overflowing and have reached saturation point, the situation becomes scarier with the daily release of the garbage expected to jump to 18,000 tons by 2021, committee said. The Supreme Court had on Friday 2000 said, "We direct that sites for landfills will be identified bearing in mind the requirement of Delhi for the next 20 years within a period of 4 weeks from today." नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम खलील, मोहम्मद खलील। मोहम्मद खलील जी। तो मोहम्मद खलील जी, आप यहाँ पर क्या काम करते हैं? देख सकते हैं आप गाजीपुर लैंडफिल है
यहाँ पर बकरा मंडी में अंदर काम करते हैं। आप बकरा मंडी के अंदर काम करते हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर होता क्या है? इस गाजीपुर जो है पहाड़ जो बना हुआ है कूड़े का, इसमें होता क्या है? होता क्या है, ये गंद खाना है, सारा गंद है, ये पूरा गंद है। तो यहाँ पर कहाँ कहाँ का कूड़ा आता है दिल्ली में? पूरी दिल्ली का कूड़ा सारा इधर ही आता है। और कहीं पर है ऐसा कूड़ा घर पूरी दिल्ली में? नहीं, यहाँ पे है, यानी पूरे दिल्ली का कूड़ा सारा यहीं पर आता है। तो कूड़ा आता है, उसके बाद क्या होता है? कूड़े इसमें डालते हैं, बदबू आती है, बदबू आती है, यानी मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, मच्छर बहुत काटते हैं, मच्छर बहुत है। तो इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। एक तो पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी में साफ नहीं है, पानी भी साफ? ये हम पानी पीते हैं तो पेट में हमारे दर्द हो जाता है। अच्छा, हमें ये पानी सूट नहीं करता। तो यानी कि इसकी वजह से पानी भी यहाँ तो गंदा हो चुकी है, जिससे बीमारियाँ आ रही हैं। सरकारी यहाँ पर इसके ऊपर कुछ काम होता है, जैसे कि ऊपर मिट्टी डालते हो, घास लगाते हो? ये पीछे की साइड उन्होंने मट्टी डाल रखी है। पीछे की साइड, इस साइड नहीं डाल रहे हैं? इस साइड नहीं डाल रहे। अगर इस साइड डाले तो थोड़ी इसकी बदबू है ना, वो कम हो जाएगी। अच्छा, पीछे की साइड डाल रखा है, पीछे की साइड डाल रखा है। तो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर तक बदबू इसकी फैल रही है? पूरे इसमें फैलती है आगे तक, 2-3 किलोमीटर तक। 2-3 किलोमीटर दूर। तो इससे कौन कौन सी बीमारियाँ आ रही हैं? जैसे बीमार पड़ते हैं, बुखार चल जाता है इससे। सांस की बीमारी ज़्यादा होती है। आपका नाम क्या है सर? रईस नाम है मेरा। रईस नाम। आप यहाँ पर क्या करते हैं? अभी बकरा मंडी में काम करते हैं। इन्हीं के साथ? हाँ जी। तो आप कुछ बता सकते हैं यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, क्या कैसे काम होता है? सर वही बदबू है यहाँ पे, कूड़ा का पूरी दिल्ली का कूड़ा आता है यहाँ पर। हाँ। उससे जो बारिश होती है उस समय हवा चलती है, बदबू उड़ती है इसकी बहुत। अच्छा, वो हवा के साथ बदबू आती है। बदबू आती है पूरे। अच्छा, जिस तरफ हवा चलती है उस तरफ बदबू जाती है? हाँ जी, उस तरफ बदबू जाती है। तब तो बरसात के समय तो इसमें मच्छर भी बहुत आते होंगे? बहुत मच्छर आते हैं बहुत। अच्छा, और उससे जो है एक सांस की बीमारी ज़्यादा हो रही है लोगों को। सांस की बीमारी? सांस की बीमारी वो ज़्यादा बीमारी हो रही है। अच्छा, तो सरकार आपकी मदद नहीं करेगी किसी तरीके से दवा हुआ, या फिर इसको कुछ अपना काम नहीं करेगी ताकि बीमारी थोड़ी सी ना फैले, जैसे कुछ ऐसे से वो चला है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा, आपने जो मोदी जी ने चलाया है स्वच्छ भारत अभियान, उसका नाम सुना है? हाँ, सुना है। तो सुना, तो उस अभियान के तहत इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है उसके तहत? देखो जी, ये कूड़ा घर है यहाँ पे, ये कूड़ा घर समझ लो इसे। हाँ हाँ। ये सारा पूरी दिल्ली का कूड़ा यहाँ आता है, तो यहाँ पे क्या साफ सफाई होगी यहाँ? अब ये बाथरूम लैट्रिन। अच्छा, तो आपको लगता है कि गाजीपुर के अलावा और कहीं भी कूड़ा घर बना देना चाहिए ताकि यहाँ से थोड़ा यहाँ की परेशानी थोड़ी कम हो जाए? कम हो जाए। देखो जी, वो तो सरकार सोचे इस बात को। हाँ, नहीं, आपको अपनी राय देनी चाहिए, जैसे कि कहीं और कूड़ा घर बनना चाहिए ताकि यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर सारा कूड़ा जाता है, बदबू फैलती है। तो कूड़े घर तो हैं दिल्ली में, कई कूड़े घर हैं, ऐसे अच्छा। बात नहीं है। हरियाणा की तरफ है, इधर भी है, चारों तरफ कूड़े घर हैं। एक दो कूड़े घर हैं, मैंने सुना है। अब इतनी जगह तो है नहीं जो कूड़ा घर बन सके, है नहीं। अब ये दिल्ली में यही एक जगह है जो पूरी दिल्ली का कूड़ा यहाँ आता है। अच्छा, तो उन सब तरफ ही ज़्यादा, हरियाणा की तरफ वहाँ सब नहीं जाता? तो वो सब एरिया, वो उधर का कूड़ा आता है वहाँ पर। अच्छा अच्छा, अपने एरिया में बैठे हैं सब। हाँ। फिर भी यानी कि इसकी कमी धीरे धीरे यानी कूड़ा घर की कमी कम होती जा रही है, यानी और कमियाँ बढ़ती हैं, कूड़ा घर और भी कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। इसका मतलब ये है, इस वजह से सारा कूड़ा एक ही जगह पर आ रहा है, इसके कारण सारी परेशानियाँ जो हैं वो इसी एरिया में फैली जा रही हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा बदबू जो है, सबसे ज़्यादा यहीं है बदबू। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो गंद है यहीं है, गाजीपुर ओखला एरिया में? हाँ जी। सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत है जी। पानी की दिक्कत, यानी गंदे पानी की जो है ना, दिक्कत है? बोरिंग का पानी आता है, उसमें बदबू आती है पानी के अंदर। बदबू आती है, तब तो खाना बनाना पीना ये सब बहुत मुश्किल तो है। हम कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आते हैं अपने लिए पीने अच्छा, के घर से 1 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लेने के लिए? पानी लेने के लिए। तो देखिए कितनी परेशानी यहाँ पर हो रही है सरकार की वजह से। किसकी कमी कह सकते हो हम नहीं बता सकते आपको। आम लोगों को यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ अगर रही हम है। यहाँ का पानी पीते हैं पेट में दर्द हो जाता है। पेट में दर्द होता है, तो सरकार ट्रक नहीं भिजवाती पानी के टाइम से होते हैं, वो सब भी नहीं भिजवाती, किसी तरीके का आपको यानी मदद नहीं दे रही? अगर भिजवाती है तो ये बाहर जो होटल वाले ना, ये सब भोग देते हैं। अच्छा, यानी कि मौका नहीं देते। आम आदमी की वजह से बहुत तकलीफ। So we all are here at the site of the biogas plant, and now let's take an interview of a common person living here, to get to know that what actually is happening here. Is this going to be advantageous for the people living here, or it's going to be disadvantageous? So let's take interview of a person. नमस्ते अंकल, मैं अंकित पांडे हूँ, बालगंज पब्लिक स्कूल से आया हूँ। सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सलेक्शन का सामान, थोड़ा तेज बोलिए। सलेक्शन का सामान। तो सर, आप यहीं पे आसपास रहने वाले लोग हैं? सामने मकान है। अच्छा सर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बायोगैस प्लांट है, ये किस चीज़ का प्लांट बन रहा है? ये बिजली प्लांट बन रहा है बेटा, बिजली प्लांट। बिजली प्लांट। ये पूरा जो कूड़ा आता है दिल्ली से, वो कूड़ा जला करके इसमें बिजली बनेगी।
पूरा यानी कि जो दिल्ली से कूड़ा आ रहा है ट्रक में अपने जमुना पार से, जमुना की इस तरफ से आ रहा है जो कूड़ा, उसको यहाँ पर उसका प्रोसेस करके लोग बिजली पैदा करेंगे। उसकी सफाई करके उसको जला करके उसको बिजली बनेगी। तो सर आपको बता सकते हैं कोई कंपनी है जो बना रही है, कौन लोग? कंपनी के अंदर 5-7 कंपनी, 5-7 कंपनियाँ एक साथ मिलकर बना रही है। एक साथ, ये बाहर की विदेशी कंपनी है, विदेशी कंपनी आ रही है बनाने के लिए। तो अच्छा ये काम कब से चल रहा है, कितना टाइम हो गया इस काम को? लगभग 3 साल के आसपास होगा। 3 साल से काम चल रहा है। तो कुछ आपको बताया इन लोगों ने कब तक क्या कैसे? अभी ये बोलते हैं 1 साल के अंदर चालू हो जाएगा। 1 साल के अंदर बिजली चालू हो जाएगी। तो ये बिजली कहाँ तक सप्लाई करेंगे? ये बोले जो आगे बिजली प्लांट है उसके अंदर डालेंगे। अच्छा यहाँ से कूड़े से बिजली बना के उसके अंदर सप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ इसका मतलब ये एक तरीका है ताकि जो हमारा कूड़ा है उससे हम लोग बिजली पैदा कर सकें और बिजली की कमी को दूर कर सकें। और कुछ बताना? अच्छा जो यहाँ पर आपने देखा होगा गाजीपुर का जो कूड़ा घर है बड़ा सा है, उसकी वजह से आपको कोई परेशानी आ रही है? और जब स्मेल आती है, जब कभी हवा चलती है तो स्मेल आती है। स्मेल आती है। हमने और भी लोगों का इंटरव्यू लिया, उनकी भी यही प्रॉब्लम है। अच्छा मच्छर वच्छर भी काट बीमारियाँ भी मच्छर भी है, चीलें उड़ती रहती हैं। देखो ये सब चीलें यही वो लाती हैं कूड़ा, यहीं डाल देती है घरों में ही। अच्छा ये जो उसके पंजे में दाब के लाती है ना, हाँ मांस वगैरह घरों में डाल देती है। हाँ डाल देती है। अच्छा अब इससे कोई बीमारियाँ कैसी कैसी बीमारियाँ सामने आ रही हैं वैसे? हमारे भैया ये सब जो ये आपको फीवर है, ये खांसी वगैरह, ये सब इसकी भी इसी कारण से हो रहा है। तो मच्छर काटते हैं, गंदे गंदे मच्छर इसके अंदर से उड़काते हैं। अच्छा जो बायोगैस प्लांट बन रहा है इससे आपको लगता है इससे कोई आम लोगों को फ़ायदा होगा या कुछ ऐसा होगा? इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसके अंदर से जो चिमनी देख रहे हो, चिमनी से वो धुआं निकलेगा। अच्छा उसके अंदर वो उसके कण निकलेंगे, वो घरों में केमिकल वगैरह जो उसमें जलेगा ना पूरा, तो पूरे वो कण से होते हैं वो जब जलने के बाद में तो नहीं डालेंगे, आसपास ही कहाँ करेंगे। पॉल्यूशन हो यानी फ़ायदा कम होगा, नुकसान ज़्यादा होने वाला चालू होगा। इसके अंदर से इतनी आवाज़ आएगी, यहाँ रह नहीं पाएंगे। अच्छा यानी कि इसका मतलब फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा। फायदा कुछ नहीं है इसका, फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा कुछ भी नहीं है। मशीन चलेगी इतनी आवाज़ आएगी, यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ इतना शोर हो जाएगा कि जहाँ रह नहीं पाएंगे। ये तो कम से कम रिहायश से कम 2-3 किलोमीटर दूर होना चाहिए था, यानी जहाँ रहने वाले लोगों से एरिया से कम 10 किलोमीटर दूर होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आ सके। तो इसकी वजह से पानी भी गंदा होगा। अभी तक तो पानी के कुछ पता पड़ेगा, अभी चालू नहीं हुआ। ये चालू होता है तो पता पड़ेगा क्या क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। तो लोग कुछ तो बता रहे होंगे जैसे सरकार ने कुछ इसके लिए कुछ करेगी तो ना? ये बता रहे हैं कि इसके अंदर आवाज़ भी नहीं आएगी और प्रदूषण भी नहीं उड़ेगा और ये फ़ायदा है। अब देखो ये कह रहे हैं यहाँ के लोगों को इसमें ड्यूटी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, यहाँ के लोगों की ले भी नहीं रहे, किसी को ले भी नहीं रहे, यानी बाहर के बंदे आ रहे हैं कहीं से। अच्छा यानी आपको खाली फायदे दिखा कर लोग अपना काम कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये प्राइवेट है या फिर ये सरकारी है? सरकारी है इसमें, लेकिन कंपनी ने ठेका लेकर कम ठेका लेकर बाहर की कंपनी से बना रहे हैं। तो सरकार इसके लिए कुछ तो करेगी ना, फायदा की कुछ तो करना चाहिए ना सरकार को। अब जब करेगी तब देखेंगे भैया, फिलहाल तो कोई फायदा दिख नहीं रहा। नहीं है, 1 साल बाद ही पता चलेगा। 1 साल बाद अभी क्या होता है। As we had taken the interview of a common person living here, we come to know that there are not advantages. The advantages are not going to be seen by this biogas plant. Instead of this, we came to know that the chimney which is there will act as a polluting agent, because the chemicals which would coming out from this chimney is going to harm the people. Now, one of the main problems which we come to know is that the problem which would be faced by scavengers. The scavengers would take the piece of the waste or the dead animals and put it here. So that's it. This video was made by me, Ankit and Soumyadeep for our small group which we proudly call Waste Wise. The main focus of this group is to find ways for wise management of waste and spread awareness among the people. Thanks for watching, and we hope you will contribute your maximum in saving the environment. Good morning. Today we are here in the कर दे। we all are here in the Mayur Vihar village. अरे बेवकूफ मयूर विहार में गाजीपुर है, देख यार क्या कर रहे हैं। बस भाई स्मार्ट है।